Analyze the challenges faced in the efficient implementation of the anti-defection law. Does the law intended to discourage defections also stifle healthy intra-party debates and dissent? Discuss the implications. Now you have to answer this question within the word limit of 250 words. So this is going to be a little bit comprehensive answer compared to what you do in 150 words. We have already discussed these all points in our previous questions. Keep in mind that you have to address all the needs of the question, each and every part of the question, and you have to do within the word limit of 250 words. Introducing Educamy's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Now, if you'll ask the difficulty of this question, this is a pretty, you may say, straightforward question, because you can expect questions on anti-defection law, because this is a very burning issue you see in newspapers on a daily basis, whether it is Maharashtra legislature, whether it is Karnataka legislature or any different state legislatures. Okay, तो एंटी-डिफेक्शन पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इन GS2, और इस पर अगर आप कुछ पॉइंट्स, अगर आपने एक आंसर फ्रेम कर लिया है ऑन एंटी-डिफेक्शन, तो यू कैन ऑल्सो फ्रेम आंसर इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन एंटी-डिफेक्शन इन द एग्जाम ऑल्सो. आंसर लिखने का ये फायदा होता है ना कि किसी भी टॉपिक पे आपको एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स याद हो जाते हैं जो कि आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कुछ पॉइंट्स जो है एग्जाम में भी सोच सकते हैं. लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी आंसर नहीं लिखा है, एक भी एंटी डिफेक्शन पर अगर आपने आंसर नहीं लिखा है, तो वहां पर आपको बिल्कुल नया सा लगेगा और वहां पर आपको पॉइंट्स फ्रेम करने में काफी मुश्किल होगा. नाउ इफ यू सी फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सिलेबस दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, इट इज आस्क्ड फ्रॉम GS2, General Studies 2, and you will see a section in the syllabus of GS2 where it is given Parliament and state legislatures, structure, functioning and conduct of business, powers and privileges and issues arising out of these. Now defection is related to legislature, हमने देखा है. तो यहाँ पर अगर आपने legislature पढ़ा है, उसमें क्या improvement होना चाहिए, उसमें क्या problems है, तो उसमें एक problem जो है that is defection, और उस पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. तो this is very much related to syllabus. हमने already discuss कर रखा है कि when a question is asked in mains, it is strictly based on syllabus. अगर आप syllabus को line by line तैयार करते हैं ना, जैसे अगर आपने पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को तैयार किया होगा कभी कभी अपने नोट्स में, तो आपने डिफेक्शन के बारे में जरूर बात की होगी, और डिफेक्शन को कैसे सुधारना है, इसमें लॉज में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये जनरली आप अपने नोट्स में इंक्लूड करते हैं. जो भी अच्छे से तैयारी करते हैं वो अपने नोट्स में इन सब पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं. चलिए करते हैं स्टार्ट. तो फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज टू वी इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन टू द एग्जामिनर. आप बता दीजिए कि क्या है एंटी डिफेक्शन. सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमनली नोन एज द एंटी डिफेक्शन लॉ, ADL जिसको बोलते हैं, was introduced in 1985 by the 56th constitutional amendment, and it was enacted to ensure that in case a party member violates the mandate of the party, he will lose his membership of the house. आपको पता है हमारे जो पार्लियामेंट में या हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स में काफ़ी जो है इलीगल एंड इमोरल एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत दिनों से आते रही है, बहुत दिनों से होता रहा है. ठीक है, बहुत एक पुराना कहावत को भी आप कोट कर सकते हैं कि पहले लेजिस्लेटर्स को कहा जाता था आया राम गया राम. इसका मतलब क्या हुआ कि उनका कोई पॉलिटिकल एलिजेंस टुवर्ड्स द पब्लिक नहीं रहता था, उसको इरोड करके वो किसी भी पार्टी में स्विच कर लेते थे आफ्टर बीइंग इलेक्टेड. तो इस चीज को रोकने के लिए इन 1985 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसके थ्रू 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया, और इसके बाद से इन केसेस में डिक्रीज हुआ है, डेफिनेटली डिक्रीज देखने को मिला है, काफी ज्यादा मिनिमाइज हुए हैं, लेकिन स्टिल देयर आर मेनी केसेस ऑफ डिफेक्शन और रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं. तो इसी चीज को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके अलावा और मैंने आपको बोला है कि राइट द इंट्रोडक्शन विद इन 30 to 35 वर्ड्स. इससे ज्यादा वर्ड्स आप यूज नहीं करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ज्यादा वर्ड यूज कर देंगे तो आपको मेन बॉडी और कंक्लूजन में वर्ड्स की कमी पड़ने लगेगी, और उस समय क्या होगा कि आप वर्ड लिमिट एक्सीड कर देंगे, और वर्ड लिमिट एक्सीड करने पे आपको पता है कि पेनल्टी मार्क्स भी मिल सकते हैं. इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं, यूपीएससी कुछ भी कर सकता है आपके साथ. तो हमेशा जो भी रूल बनाया हुआ है उसके विद इन काम करिए. जेन्युइन सा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन अगर आपने लिख दिया है तो एग्जामिनर को यह समझ में आ जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है. नेक्स्ट थिंग आप ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा लॉ के बारे में बता दीजिए. यू कैन राइट अबाउट कि किस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है इन एंटी डिफेक्शन लॉ. जैसा आप है वॉलंटरी गिविंग अप पार्टी मेंबरशिप, वोटिंग कॉन्ट्ररी टू
द पार्टीज विप, जॉइनिंग अनदर पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड। इसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम देयर डेट ऑफ नॉमिनेशन, तो भी उसको डिफेक्शन कहा जाता है। तो ये सारे केसेस में आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकते हैं और आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फ्रॉम बीइंग द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट। यहां पर लेकिन एक्सेप्शन है कि इफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी विद इन द लेजिस्लेचर, तो उसको जो है डिफेक्शन नहीं कहा जाता है। ठीक है, यहां पर देखिए इस एग्जाम्पशन को पार्टी फ्रीक्वेंटली आज के दिन में जो है इसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती है इस एग्जाम्पशन को और यूज करती है फॉर देयर ओन पर्पसेस। इसमें क्या होता है कि 2/3 मेंबर्स ऑफ अ पार्टी अगर दूसरे पार्टी में मर्ज करना चाहते हैं, जिसको ओरिजिनल पार्टी ही कंसिडर किया जाएगा, तो उस केस में उसको डिफेक्शन नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो स्प्लिट के केस में डिफेक्शन है लेकिन मर्जर के केस में डिफेक्शन नहीं है। दिस इज अ वेरी लूप होल और इसको यूज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां पर आपने लिख दिया कि व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन इन एंटी डिफेक्शन लॉ। यू कैन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज स्पेस एंड टाइम यू कैन राइट दिस विद इन अ डायग्राम ऑल्सो। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आप हब एंड स्पोक मॉडल बना सकते हैं। आप सेंटर में बनाइए कि ग्राउंड्स ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, और उसमें आप बना सकते हैं डिफरेंट विंग्स जिसमें आप बोल सकते हैं ये डिफरेंट रीजंस आप दे सकते हैं। तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और आप थोड़ा सा टाइम भी सेव कर लेंगे और आप स्पेस भी सेव कर लेंगे। ये सब बहुत इंटेलिजेंट मूव्स है जिसको आपको धीरे धीरे आप सीखेंगे। जैसे आपको लगेगा कि नहीं, आप इसको इस सारे चीज़ों को आप डायग्राम में बना सकते हैं। और जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि फॉर एग्जांपल सोचिए कि अगर आपके पास एग्जाम आप दे रहे हैं और लास्ट के आपके पास 7 मिनट्स बचे हुए हैं, 7 to 8 मिनट्स बचा हुआ है और आपके पास 2 क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर। यू हैव अ 10 मार्कर क्वेश्चन एंड यू हैव अ 15 मार्कर क्वेश्चन। अब इस 7 मिनट्स में आपको क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है, तो आप कैसे आंसर करेंगे? तो जिस भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यू कैन ड्रॉ डायग्राम्स, आपको लगता है कि अगर इस क्वेश्चन में मैं डायग्राम बना दूंगा तो बहुत हद तक जो है मैं समझा दूंगा कि मुझे क्या समझाना है इस क्वेश्चन में, तो आप फ्रीक्वेंटली डायग्राम यूज करिए। उस क्वेश्चन को छोड़िए मत, उसमें जल्दी से डायग्राम बना दीजिए। एक डायग्राम बनाइए, हो सकता है 2 डायग्राम बना दीजिए और कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जहां पर आपको 0 नंबर मिलने वाला था वहां पर आपको एटलीस्ट 3 से 4 नंबर मिल जाता है। और यूपीएससी में 3 से 4 नंबर का आप महत्व जानते हैं। लेटर ऑन आपको पता चलेगा कि रैंक डिसाइड होने में कितना इंपॉर्टेंट होता है ये 3 से 4 नंबर। ठीक है, तो कभी भी किसी क्वेश्चन को छोड़ने का मत सोचिए। एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप इसको डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं तो समझाइए और कोशिश करिए अपने टाइम को यूटिलाइज करने का। चलिए, हमने बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट पे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस किया जाता है एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ में। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है कि लॉ हैज फेल्ड टू कर्ब डिफेक्शंस इन रीसेंट इयर्स एंड लैक एनी डेटरेंस इफेक्ट ऑन लेजिस्लेटर्स। देखिए रिसेंट टाइम्स में डिस्पाइट कि 1985 से हमारे पास एक लॉ है, ये लॉ जो है डेटरेंस के जैसा एक्ट नहीं कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है कि मानिए कि एक मेंबर थे, उन्होंने डिफेक्ट कर दिया, उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन जब बाईपॉल्स होता है या फिर इलेक्शंस होता है, री इलेक्शंस होता है, तो उस केस में जो है वो इलेक्ट होके फिर वही मेंबर आ जाते हैं हमारे असेंबली में। तो यहाँ पर क्या है कि जो पब्लिक का एक्सेप्टेंस है अबाउट डिफेक्टिंग लेजिस्लेटर्स वो बहुत ज्यादा है। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रेडी नहीं है इस तरह के लॉस को लेकर, और पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है लॉ का। क्योंकि वंस अगर पब्लिक री इलेक्ट कर दे सेम मेंबर को, तो फिर डिफेक्शन का आप समझ सकते हैं उस पर्सन का जो है मॉरल बहुत हाई हो जाता है। उसको लगता है कि अगर वो फिर से ऐसा कुछ डिफेक्शन करता है तब भी वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो एक तरह से पब्लिक एक्सेप्टेंस है और ये बहुत बड़ी बात है, और इसी का इफेक्टिव एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। इसके बाद जो क्रिटिसिज्म है लेवल्ड अगेंस्ट एग्जेम्पशन गिवन टू स्प्लिट्स इन पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमने देखा ना, जो मर्जर्स में डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है, तो यहां पर यह कहा जाता है जनरली कि ऑल्दो एंटी डिफेक्शन लॉ प्रिवेंट करता है सिंगल मेंबर को डिफेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप ग्रुप में करना चाहें तो ये अलाउड है। तो एक तरह से आप इसको लिख सकते हैं, द प्रेजेंट लॉ फॉरबिड्स इंडिविजुअल डिफेक्शन बट फैसिलिटेट्स ग्रुप डिफेक्शन। हमने देखा है बहुत सारे केसेस में। आप इसको एक सरकास्टिक वे में लिख सकते हैं कि जो है ये रिटेल डिफेक्शंस को रोकता है लेकिन होलसेल डिफेक्शंस को नहीं रोक सकता है। तो इस तरह के पॉइंट्स को अगर आप ऐड करते हैं तो काफी अच्छा लगता है एग्जामिनर को कि आपको पता है कि क्या क्या चीजें हो रही है। इसके बाद यू कैन राइट अनदर पॉइंट, कंट्रोवर्शियल रोल ऑफ स्पीकर्स। देखिए आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो फाइनल डिसीजन होता है दैट इज ऑन द चेयरपर्सन और दी जो भी मतलब स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा, उनके पास पावर होता है डिसाइड करना फाइनल डिसीजन कि वेदर दिस पर्सन हैज डिफेक्टेड और नॉट। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा लूप होल है इस लॉ में कि यहां पर कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है कि किस टाइम के बीच में
उन्हें डिसीजन देना है। तो अब होता क्या है, देखिए जनरली स्पीकर जो है दैट इज जो है वो आपको पता है पॉलिटिकल एलिजेंस होता है उनका भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उनको कहता है, उनको मतलब ये कहा जाता है कि उनको एकदम ही न्यूट्रल रहना है, अनबाइज्ड रहना है, लेकिन स्टिल दे हैव पॉलिटिकल एलिजेंस इन द रीसेंट टाइम्स इट हैज बीन सीन। तो इसके वजह से क्या होता है कि अगर उनके पार्टी के मेंबर्स अगर डिफेक्ट करते हैं तो उस पे वो सुनवाई करते ही नहीं है, ठीक है। अब उस पे सुनवाई नहीं करते हैं तो जो टाइम फ्रेम है विद इन पूरा टर्म ही खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर आप डिसीजन देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज को भी बहुत मिसयूज किया गया है स्पीकर्स के द्वारा। तो ये भी अगेन जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ को अब मतलब रोकता है और अच्छे से नहीं करने देता है। एक और प्रॉब्लम आता है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन में, आगे हम लोग जो जिसमें डिस्कस करेंगे कि ये स्टिफल करता है इंडिविजुअल डिसीजंस को। तो अब जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ मतलब जो लोग हैं वो एक पर्सन को चूज करते हैं कि आप हमको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो पर्सन हो सकता है कि इंडिविजुअली इलेक्ट हो जाए या किसी पार्टी को ज्वाइन करके वहां पर से उस सीट से वो इलेक्ट हो जाए। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहां पर जब आप पार्टी के थ्रू इलेक्ट होके आते हैं तो आपको पार्टी के लाइन को ही टो करना पड़ता है और जो भी पार्टी डिसीजंस लेता है उसी के अनुसार आपको वहां पर वोटिंग करना पड़ता है। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पार्टी का व्यूज डिफरेंट हो और वहां के जो पब्लिक का एस्पिरेशन है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के पब्लिक के एस्पिरेशन का है, उसके अगेंस्ट हो, बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो। लेकिन आपको क्योंकि आप पार्टी के टिकट पे आए हैं तो आपको पार्टी के अनुसार ही वोट करना पड़ता है। तो अगेन यहां पर भी एक ये डिफेक्शन लॉ का इंप्लीमेंटेशन में ही लूपहोल बोल सकते हैं कि ये जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसको अंडरमाइन किया जा रहा है। इसके बाद अगर आप बोलेंगे, देखिए डिफेक्शन लॉ जो है वो अप्लाई होता है इन दी लोकसभा एंड इन दी राज्यसभा ऑल्सो। अब राज्यसभा का कोई रोल नहीं है या फिर स्टेट के समय में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं है इन दी फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, आपको पता है वहां पर जो है मेजोरिटी प्रूव नहीं होता है। तो इस केस में अगर आप डिफेक्शंस लगा रहे हैं इन केस ऑफ राज्यसभा भी, तो वहां पर आपको पता है राज्यसभा में जनरली नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं और उसको अपर हाउस कहा जाता है क्योंकि वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लगने की वजह से वहां पर भी जो है आप बोल सकते हैं कि जो डिसेंट्स है उसको स्टिफल किया जा रहा है और इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो अगेन एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यहां पर अगेन बहुत ज्यादा मुश्किल भी क्रिएट कर रहा है और इसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा पार्ट था वो आपसे पूछ रहा था कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्करेज तो करता है डिफेक्शन को, लेकिन एट द सेम टाइम जो पार्टी में इंट्रा पार्टी डिबेट्स और डिसेंट होने चाहिए उसको भी स्टिफल करने का मतलब क्या हुआ, रोकता है। तो आपको इस पे बताना है। जनरली ये आप इसमें यस बोलेंगे क्योंकि आपको पता है कि रिसेंट टाइम्स में हमने देखा गया है कि पार्टी का जो भी डिसीजन है उसी के अनुसार सारे मेंबर्स को वोट करना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ केसेस हैं जैसे कि इन किहोतो होलन वर्सेस जाचिलू में इन जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अपहेल्ड किया था लॉ की वैलिडिटी को, एंटी डिफेक्शन लॉ की वैलिडिटी को, लेकिन और उन्होंने कहा था कि ये लॉ सही है टू कर्ब पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, बट उन्होंने एम्फेसिस किया कि देयर इज नीड टू प्रोटेक्ट इनर पार्टी डेमोक्रेसी। इनर पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल सोचिए किसी एक मुद्दे पर, ठीक है, जैसे 3 तलाक या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही बात हो रही है, तो किसी एक पार्टी में जितने भी मेंबर्स हैं उनका हो सकता है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो उस मुद्दे पर। तो क्या उस पार्टी के विदिन इस पे डिसीजन होता है कि हमें क्या करना चाहिए, या फिर सारे मेंबर्स का वहां पर जो है सहमति लिया जाता है किसी भी डिसीजन को करने के लिए? तो ये जब तक स्ट्रांग नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि एक तरह से अगर किसी मेंबर को अपना बात रखना है तो वो नहीं रख पाएगा, क्योंकि विद इन द लेजिस्लेचर उसको तो पार्टी के अनुसार ही वोट करना है, ठीक है। तो ये जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं है, इसके वजह से भी बहुत सारा जो पर्पस है ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो डिफीट हो जा रहा है। और अगर इस केस में अगर कोई मेंबर जो है जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप बोल सकते हैं एस्पिरेशंस को मद्देनजर रखते हुए अगर अगेंस्ट में वोटिंग कर देता है तो उसको जो है डिफेक्शन लॉ लग जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कहीं से भी ये डेफिनेटली स्टिफल करता है आपका डिसेंट को। इसके बाद हमने ऑलरेडी बोला कि इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव प्रायोरिटाइज पार्टी लॉयल्टी। पार्टी लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट टाइम उनको टिकट नहीं मिलेगा अगर वो पार्टी के अगेंस्ट काम करेंगे, और ये करता है वीकनिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रीसेंट टाइम्स में क्या देखा गया है कि जो डिफेक्शंस भी किए गए हैं वो मैक्सिमम केसेस में जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक डिफेक्शंस हुए हैं, ठीक है, फॉर पर्सनल गेन रादर देन आइडियोलॉजिकल रीजंस। तो यहां पर ये डिफेक्शन लॉ का एक तरह से फेलियर है कि आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से लोग नहीं करते, जनरली बोल देते हैं कि आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में जो डिफेक्शन किया गया है दैट इज ऑन अपॉर्चुनिस्टिक रीजंस। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप इस चीज को कोट कर सकते हैं। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो लिमिटेड इंट्रा पार्टी डिबेट्स है ये करता है हैम्पर पॉलिसी इनोवेशन। अब क्योंकि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं हो रहा है, डिसेंट इंश्योर नहीं हो रहा है, तो कभी भी गवर्नमेंट जो है, जो पार्टी जो इन पावर है, वो कभी भी मतलब आप बोल सकते हैं कंसिडर नहीं करती है अल्टरनेटिव गवर्नेंस अप्रोचेस। कोई
एक मेंबर हो सकता है कि वो कुछ दूसरा तरीका बता रहा हो, लेकिन क्योंकि सब पे डिफेक्शन लॉ लगता है, सबको पार्टी के लाइन में वोट करना है, तो एक तरह से क्या हो सकता है कि जो डाइवर्सिटी का जो एक आप बोलते हैं ना, एक जो पहले हमारे डेमोक्रेसी में देखने को मिलता था, वो पूरी तरह से हट चुका है और एक ही लाइन पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज काम करती है। ठीक है, आप इसमें एक केस को भी कोट कर सकते हैं। तो आपने डिफरेंट पॉइंट्स बता दिया जिससे आप ये मान रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो स्टिफल करता है हेल्दी इंटर पार्टी डिबेट्स और डिसेंट को। चलिए, अब तो हम लोग करें क्या, फिर हम लोग पॉसिबल सॉल्यूशंस या वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं। अमेंड करें लॉ टू प्रोवाइड एग्जेम्पशन फॉर वोट्स ऑफ कॉन्शियंस अलाउइंग मेंबर्स टू वोट इंडिपेंडेंटली ऑन क्रिटिकल इश्यूज। देखिए, सारे मुद्दों पर नहीं, लेकिन कुछ ऐसे जो क्रिटिकल इश्यूज होते हैं उस पर वोट्स ऑफ कॉन्शियंस को अलाउ करना चाहिए, और अगर कोई एक पार्टी के अगर कोई मेंबर को अगेंस्ट में वोट करना है तो उसको दिया जाए। तो ये बोला गया है, लेकिन ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी मच पॉसिबल इन आर डेमोक्रेसी। आपने देखा है कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है कोई भी बिल पास कराने में। तो फिर भी इस चीज़ पर जो है आपको डिस्कशन करना चाहिए कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, कोई ऐसा चीज़ आया जो कि बहुत ज़्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस का चीज़ है, तो उस केस में इंडिविजुअल जो राय है उसको भी जो है यहाँ पर महत्व देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्पीकर चेयरपर्सन शुड डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस विद इन 3 months एड एडवाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो फाइनल अथॉरिटी जो स्पीकर्स होते हैं, जो कि आप बोल सकते हैं चेयरपर्सन या स्पीकर, जो भी उसमें उसके हेड हैं उस हाउस के, उनको विद इन टाइम लिमिट डिसीजन देना है, तभी जाके डिफेक्शन लॉ सही से काम करेगा। अगर वो टाइम लिमिट के बाद देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर ये लॉ जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। इनका ये भी कहना है कि दे शुड एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल भी आप बैठा सकते हैं, ठीक है, टू मिनिमाइज पार्टीसन रोल, क्योंकि आप जो स्पीकर हैं वो कोई मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी के, तो उनको बोला सकता है कि वो अनबाइज नहीं है, वो पॉलिटिकल एलिजेंस के मतलब अलॉन्ग काम कर रहे हैं। तो उस केस में आप कोई ट्राइब्यूनल को भी बैठा सकते हैं जहां पर जो है पार्टीसन रोल को मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके बाद Parliament should debate and decide on Law Commission and NCRWC, नेशनल कमीशन फॉर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका रिकमेंडेशन है कि रिमूव द क्लॉज रिलेटेड टू मर्जर एज एन एक्सेप्शन इन डिस्क्वालिफिकेशन। ये जो मर्जर वाले को जो हम लोग एक्सेप्शन दे रखे हैं कि ये जो है ये जो डिफेक्शन नहीं होगा, तो इसको भी हटाने का जो है रिकमेंडेशंस दिया है लॉ कमीशन के द्वारा। इसके बाद आप इंटर पार्टी डेमोक्रेसी प्रोसेस को इंप्रूव करिए, ठीक है, ओपन डिबेट्स करिए ताकि पार्टी डिसिप्लिन बना रहे। ये भी कहा गया है कि विप का रोल को और इंपॉर्टेंस दिया जाए। विप जो है, आपको पता है विप क्या होता है। विप जनरली जो वैसे मेंबर होते हैं जो कि इन लाइन रखते हैं सारे मेंबर्स को विद द पॉलिटिकल डिसीजंस ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। तो यहां पर क्या है कि विप को अगर जुडिशियली यूज करते हैं हम लोग, उनका पोजीशन को स्ट्रांग करते हैं, तो वो अलाउ कर सकते हैं कि किस केस में हमें सहमति के साथ काम करना है और किस केस में जो है इंडिविजुअल पर्संस जो है वो वोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इसके बाद दिनेश गोस्वामी कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन था कि डिफेक्शन को, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव इशू है, इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर एज पर द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अभी हमारे यहाँ स्पीकर्स और चेयरपर्सन्स करते हैं, लेकिन इसको प्रेसिडेंट और गवर्नर को देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इलेक्शन कमीशन का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। तो ये सब पॉसिबल सॉल्यूशन है, आपने बता दिया। द लास्ट थिंग इज यू नीड टू कंक्लूड कैसे करना है आप बता सकते हैं कि डिफेक्शन कंटिन्यूज अनअबेटेड एंड स्पीकर रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग ऑन दिस डेवलपमेंटल बेस्ड ऑन देयर पॉलिटिकल पार्टीज। यू कैन कोट रिसेंट एग्जाम्पल्स लाइक मणिपुर, कर्नाटका, ठीक है, जहां पे भी डिफेक्शन का केस हुआ है वहां पर आप कोट कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस टू रिफॉर्म द एंटी डिफेक्शन लॉ। एक छोटा सा कंक्लूजन है, बिकॉज इतना लंबा आंसर लिखने के बाद यू हैव ऑलरेडी स्पेंट अराउंड 8 to 9 minutes, तो आपके पास कंक्लूजन लिखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, लेकिन स्टिल आपको कंक्लूजन लिखना है। अगर आपने इतनी चीज़ों को अच्छे से विद इन टाइम लिमिट एग्जामिनेशन हॉल में कर लिया तो आपको बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। और बहुत अच्छे नंबर से मतलब क्या हुआ, यू विल गेट around 55 to 60% of the number, and that is the maximum number that you can get in UPSC in a particular question. अगर 60% नंबर आप लाते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो यू आर गोइंग टू टॉप दिस एग्जाम। अगर आप सारे क्वेश्चंस में लाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, लेकिन अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन में भी अगर 60% नंबर ले आते हैं तो आपका स्कोर विल समवेयर लैंड अराउंड 95 to 100, और 95 to 100 इज अ वेरी गुड स्कोर। तो इसी कारण इस प्रोसेस को फॉलो करिए। इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं होगा। इसको डेली बेसिस पे करिए एंड यू विल सी चेंज विद इन 2 month के बाद आपको लगेगा कि यू हैव इंप्रूव्ड ड्रास्टिकली। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।